I've started this, I ended the other one because I think there was some issue. आप लोगों को नज़र नहीं आ रहा था. I've started this new live session. Can you now clearly see the model? I've switched my internet. Can you now clearly see the model? Okay, we were talking about the maxillary first premolar. Maxillary first premolar की हमने 4 surfaces के बारे में बात की थी, starting from the facial surface. The facial surface is pentagonal, 5 sides हैं इसकी, cervical margin, distal, mesial and 2 occlusal parts. The mesial is longer, the distal is shorter, the cervical curves towards the root apex, and the occlusal margin is divided into 2 unequal halves. The longer one is the mesio-occlusal and the shorter one is the disto-occlusal. जो lingual aspect है, it also looks like a pentagon. 5 sides हैं बिल्कुल वैसे ही, cervical, mesial, distal and 2 occlusal halves. The longer one is the disto-occlusal and the shorter one is the mesio-occlusal. The shorter and the smaller cusp is the lingual cusp. उसके बाद हमारे पास आ जाती हैं proximal sides. Proximal sides के बारे में अगर हम बात करें तो 2 हमारे पास proximal sides हैं, एक हमारे पास mesial side है, एक हमारे पास distal side है. The mesial side looks like both the proximal aspects look like trapezoid. The sides of the trapezoid are CJ, buccal, lingual and occlusal margin. इसी तरह distal की भी यही boundaries हैं, buccal, lingual, CJ and occlusal margin. The occlusal margin on the proximal sides are made up of the marginal ridges. The one on the distal side is called the distal marginal ridge. The one on the mesial side is called the mesial marginal ridge. Mesial marginal ridge के अंदर बहुत important एक feature है this one. Right in the center एक notch होती है जिसको हम कहते हैं mesial marginal groove. Mesial और distal दोनों sides का सबसे important feature होता है contact area. Mesial side का contact area is circular at the junction of the occlusal and middle thirds and is pushed towards the buccal side. दूसरा इस surface का बहुत important content है cervical third में, जहाँ ये मैंने red से mark किया हुआ है, बिल्कुल इस center में एक concavity सी होती है जिसको हम कहते हैं mesial concavity. तो इस दांत की कुछ differentiating features हैं जिनके बारे में मैंने बात की थी. उसमें से एक ये mesial concavity है, then the mesial marginal groove in the mesial marginal ridge, and the third one is that the mesio-occlusal slope is longer. ठीक है, ये 3 इसके important differentiating points हैं जिससे आपको पता चलेगा कि ये दांत maxillary first premolar है. ठीक है. अच्छा, डिस्टल साइड के बारे में अगर डिस्टल और मीजल को कंपेयर करें, दोनों की आउटलाइन फॉर्म्स सारा कुछ एक जैसा है. फ़र्क सिर्फ ये है कि इसकी मीजियल मार्जिनल रिज के अंदर कोई ग्रूव नहीं होता. ठीक है. जिन लोगों के पास राइट साइड का मॉडल है, मैंने पहले भी बताया था, उनका ग्रूव गलत बना हुआ है. उनका डिस्टल मार्जिनल रिज के अंदर ग्रूव बना हुआ है, डिस्टल मार्जिनल रिज में ग्रूव नहीं होता. ठीक है. दिस इज़ अ फॉल्ट ऑफ द मॉडल. अच्छा, उसके बाद डिस्टल और मीजल सर्फेसिस को अगर आप कंपेयर करें तो डिस्टल और मीजल सर्फेसिस का सारा कुछ एक जैसा है, सिर्फ उनका ओवरऑल साइज. डिस्टल सर्फेस ओवरऑल उसकी साइड डायमेंशंस छोटी हैं. दूसरा, कॉन्टैक्ट एरिया हल्का सा सर्वाइकली लोकेटेड है और कॉन्टैक्ट एरिया की शेप जो है वो अब ओवॉइड हो चुकी है. दैट इज़ इट अबाउट दी 4 surfaces, the facial, lingual, mesial and distal surfaces of the maxillary first premolar. अब हम लास्ट surface जो सबसे इम्पॉर्टेंट है उसके बारे में बात कर रहे थे लास्ट लेक्चर में, the occlusal aspect.
ऑक्लूजल एस्पेक्ट इस दांत का हेक्सागन की तरह लगता है. हेक्सागन एक 6 साइडेड ज्योमेट्रिकल फिगर होता है. इट इज़ वाइडर बकोलिंगुअली, ये इसकी बकोलिंगुअल डायमेंशन है, ये वाली डायमेंशन इसकी वाइड है और ये वाली डायमेंशन मीजियोडिस्टल इज नैरो. हेक्सागन है, इसका मतलब है कि इसकी 6 साइड्स होंगी और वो 6 साइडें कौन सी हैं? एक आपकी डिस्टल साइड है, एक आपकी मीजियल साइड है. डिस्टल एंड मीजियल साइड्स आर मेड अप ऑफ द डिस्टल एंड मीजियल marginal ridges. Then you have a buccal aspect which is divided into 2 halves, and then you have a lingual aspect which is divided into 2 halves. That makes a total of 6 sides. The buccal outline is divided into 2 unequal halves, the mesio-occlusal and the disto-occlusal slopes, और इन slopes को हम ridges भी कहते हैं. इसी तरह जो लिंगुअल आउटलाइन है सेमी ल्यूनर सा आर्क सा बन रहा है ये, लेकिन ये 2 हाफ्स में डिवाइडेड है. उसी तरह मीजियो-ओक्लूजल और डिस्टो-ओक्लूजल स्लोप्स ऑफ द लिंगुअल कस्प. ये आपकी 6 बाउंड्रीज हैं ऑक्लूजल एस्पेक्ट की. बकल एस्पेक्ट 2 हाफ्स में डिवाइडेड है, लिंगुअल एस्पेक्ट 2 हाफ्स में डिवाइडेड है. देन यू हैव ऑन द प्रॉक्सिमल साइड्स मीजियल मार्जिनल रिज एंड डिस्टल मार्जिनल रिज. दैट मेक्स अ टोटल ऑफ 6 साइड्स. हेक्सागन है, ठीक है. अच्छा, अब ये बाउंड्रीज हैं ऑक्लूजल एस्पेक्ट की, बहुत इंपॉर्टेंट है. ऑक्लूजल एस्पेक्ट की बाउंड्रीज इन्यूमरेट करना आना, इनलिस्ट करना आना, उनको ड्रॉ करना आना बहुत इंपॉर्टेंट है. अब हम बात करेंगे ऑक्लूजल एस्पेक्ट के कंपोनेंट्स के बारे में. गौर से अगर ऑक्लूजल इस पूरे टेबल को देखो तो तुम लोगों को क्या नज़र आ रहा है? कुछ एलिवेटेड रीजन्स नज़र आ रहे हैं और कुछ डिप्रेस्ड रीजन्स नज़र आ रहे हैं, जिनको हम कहते हैं एलिवेशंस एंड डिप्रेशंस ऑफ द क्राउन. एलिवेटेड रीजन्स क्या नज़र आ रही हैं आपको? दिस इज व्हाट इज एलिवेटेड. सॉरी, लेट मी होल्ड द मॉडल हियर. ओके, एक एलिवेटेड रीजन ये है, एक ये है. राउंडेड एलिवेशंस आपको नज़र आ रही हैं. क्या है ये? कस्प्स. सो यू हैव 2 कस्प्स, अ बकल कस्प एंड अ लिंगुअल कस्प. ये 2 elevated rounded elevations हैं, rounded convexities हैं on the occlusal table. Then you can see these linear convexities 1 and 2. ये linear convexities हैं marginal ridges. यही सिर्फ आपके पास crown elevations हैं. Depressed regions आपको कौन कौन से नज़र आ रहे हैं crown में? आपको एक ये बड़ा सा ditch नज़र आ रहा है, एक ये बड़ा सा ditch नज़र आ रहा है. This ditch is called the fossa. So 1 fossa and 2 fossa. The one on the distal side is called the distal triangular fossa. The one on the mesial side is called the mesial triangular fossa. ये पूरी चीज़, ये पूरा जो डिप्रेशन है, ये एक fossa हो गया और ये पूरा डिप्रेशन दूसरा fossa हो गया. So there are 2 fossas on the occlusal aspect of the maxillary first premolar. The one on the mesial side is called the mesial triangular fossa and the one on the distal side, this one is called the distal triangular fossa. अगर गौर से देखो तो इसकी बाउंड्रीज को अगर आपस में जोड़ो तो ये ट्रायंगल सा बनता है फोसा, तो इसलिए हम इसको ट्रायंगुलर फोसा कहते हैं. अब इसके अंदर अगर देखो तुम लोग तो पिन पॉइंट डिप्रेशंस नज़र आ रहे हैं कुछ, ठीक है. ये पिन पॉइंट डिप्रेशंस क्या होता है? पिन पॉइंट डिप्रेशन बाय डेफिनेशन, अ पिन पॉइंट डिप्रेशन इज अ पिट. ये जो आपको नजर आ रही है जो मैंने ड्रॉ की है, ठीक है. दीज पिन पॉइंट डिप्रेशंस आर कॉल्ड दी पिट्स. जो डिस्टल फॉसा में पिन पॉइंट डिप्रेशन आपको नजर आ रहा है दैट इज द डिस्टल पिट, और जो मीजियल फॉसा में नजर आ रहा है वो है डेफिनेटली मीजियल पिट. फिर उसके बाद ये आपको लीनियर सी कुछ चीज़ें नजर आ रही हैं, लीनियर डिप्रेशन से नजर आ रही हैं, जैसे एक मैंने ये ड्रॉ किया है. इस तरह के जितने भी डिप्रेशंस यहाँ पर हैं ये हैं आपके पास ग्रूव्स. इसमें से कुछ प्राइमरी या डेवलपमेंटल ग्रूव्स हैं और कुछ सेकेंडरी और ऑक्सिलरी ग्रूव्स हैं. दिस इज इट अबाउट द कंपोनेंट्स. अब हम इन कंपोनेंट्स की डिटेल में जाएंगे. अभी तक मैंने आपको क्या बताया कि आपके पास क्राउन एलिवेशंस हैं. आई एम राइटिंग दिस डाउन हेयर. और डिप्रेशंस हैं. एलिवेशन, कस्प्स. सबसे अगर आपको ये इतना क्लियर नज़र नहीं आ रहा तो मैं इसकी पिक्चर भी भेज दूंगी. एलिवेशन आपके पास सबसे इंपॉर्टेंट और सबसे प्रोमिनेंट है कस्प, राउंडेड एलिवेशन, एंड दे आर 2 in number, बकल
एंड लिंगुअल कस्प। ठीक है, अब मॉडल पे बताती हूँ कि बकल और लिंगुअल कस्प कौन से हैं। पहली एलिवेशन हमारे पास है कस्प, राउंडेड एलिवेशंस, दे आर 2 in number, बकल एंड लिंगुअल कस्प। यहां पर मॉडल पे अगर आप देखें तो आपके पास 2 राउंडेड एलिवेशंस हैं, बकल एंड लिंगुअल कस्प। द बिगर वन इज द बकल कस्प एंड द स्मॉलर वन इज द लिंगुअल कस्प। सबसे आसान तरीका इनको आइडेंटिफाई करने का, जो बकल साइड के ऊपर है वो बकल कस्प, जो लिंगुअल साइड के ऊपर है वो लिंगुअल कस्प। बकल कस्प को अगर आप गौर से देखें तो बकल कस्प जो है वो बकल साइड पे लोकेटेड है, उसकी कस्प टिप का डिस्टल ऑफसेट है, इट इज़ वाइडर, हायर। और इसी तरह अगर आप लिंगुअल कस्प को देखें तो लिंगुअल कस्प की जो टिप है इट इज़ मोर टूवर्ड्स दी मीजियल साइड। उसी तरह जो लिंगुअल कस्प है ये इतना हाई नहीं है जितना बकल कस्प है, थोड़ा सा लो है, इतना वाइड भी नहीं है। दैट इज इट अबाउट द लिंगुअल कस्प। लिंगुअल कस्प इज स्मॉलर, इट इज प्रेजेंट ऑन द लिंगुअल साइड। अब इन दोनों कस्प की अपनी अपनी 4 रिजेस हैं। अगर आपको याद हो तो मैंने K9 में भी बताया था, और मैंने शुरू में जब मैं डेफिनेशंस पढ़ा रही थी कस्प्स की तो तब भी मैंने रिजेस की जब मैं डेफिनेशन पढ़ा रही थी तो मैंने बताया था कि हर कस्प की अपनी 4 रिजेस होती हैं। द कस्प रिजेस स्टार्ट फ्रॉम द कस्प टिप एंड दे मूव ऑन द डायरेक्शन और दे डिसेंड इन द डायरेक्शन इन विच दे आर नेम्ड। ठीक है, 4 डायरेक्शंस में जाती हैं। सो इफ वी टॉक अबाउट दिस बकल कस्प, दिस बिग कस्प हेयर इज द बकल कस्प। इसकी 4 रिजेस कौन सी होंगी? सबसे पहली तो वो जो इधर से बकल सरफेस के ऊपर जा रही है उसको कहेंगे बकल रिज और बकल कस्प रिज। फिर उसके बाद कस्प टिप से जो ऑक्लूजल टेबल के ऊपर आ रही है ये वाली और लिंगुअल डायरेक्शन में जा रही है, दिस इज कॉल्ड दी लिंगुअल कस्प रिज और लिंगुअल रिज। इसका दूसरा नाम, क्योंकि ये ऑक्लूजल टेबल के ऊपर है तो उसको हम ट्रायंगुलर रिज भी कहते हैं। इफ़ यू रिमेंबर द डेफिनेशन ऑफ द रिजेस, तो आपको पता याद होगा कि मैंने बताया था कि ट्रायंगुलर रिज वो रिज होती है जो ऑक्लूजल टेबल के ऊपर होती है। तो जो भी रिज ऑक्लूजल टेबल पे आती है उसका दूसरा नाम ट्रायंगुलर रिज भी होता है। सो दिस लिंगुअल रिज ऑफ द बकल कस्प इज ऑल्सो कॉल्ड दी ट्रायंगुलर रिज। अगर किसी को रिजेस की डेफिनेशंस के अंदर या रिजेस के की लोकेशन के अंदर या उनकी न्यूमरोलॉजी के अंदर कोई मसला है तो वो प्लीज़ चैप्टर 1 में जाके रिजेस को दोबारा से रिवाइज कर ले। अच्छा, तो इस कस्प की 2 रिजेस क्या हैं? पहली तो जो कस्प टिप से बकल डायरेक्शन में जा रही है बकल रिज, जो कस्प टिप से ऑक्लूजल टेबल पे आ रही है लिंगुअल डायरेक्शन में, इट इज कॉल्ड द लिंगुअल रिज और ट्रायंगुलर रिज ऑफ द बकल कस्प। फिर रह गई मीजियल और डिस्टल रिजेस। ये जो डिस्टल डायरेक्शन में जा रही है दिस इज द डिस्टल रिज, और ये जो मीजियल डायरेक्शन में जा रही है ये है मीजियल रिज। तो इस बकल कस्प की आपके पास 4 रिजेस हो गई, मीजियल, डिस्टल, लिंगुअल और ट्रायंगुलर एंड बकल। ये 4 रिजेस हो गई आपकी बकल कस्प की। किताब में भी इसी तरह लिखा हुआ है, बकल कस्प की 4 रिजेस हैं, दे आर नेम्ड अकॉर्डिंग टू द डायरेक्शन दे एक्सटेंड फ्रॉम द कस्प टिप। द बकल कस्प रिज एक्सटेंड्स cervically from the cusp tip and corresponds to the previously described buccal ridge. The lingual ridge extends from the cusp tip to the center of the groove. This ridge is also known as triangular ridge, जैसे कि मैंने बताया। अच्छा, इन एडिशन इसका एक और नाम भी होता है, वो मैं आगे जाके बताऊंगी। इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड अ हाफ ऑफ द ट्रांसवर्स रिज। फिर हमारे पास आ जाती है मीजियल, जो कि कस्प टिप से मीजियल डायरेक्शन में डिसेंड कर रही होती है, और मीजियो बकल पॉइंट एंगल के ऊपर, मीजियो बको ऑक्लूजल पॉइंट एंगल के ऊपर जाके टर्मिनेट करती है। इसी तरह जो डिस्टल डायरेक्शन में एक्सटेंड कर रही है और जाके डिस्टो बको ऑक्लूजल पॉइंट एंगल के ऊपर एंड करती है, उसको हम डिस्टल कस्प रिज कहते हैं। अब ये मीजियल और डिस्टल कस्प रिजेस, जो 2 कस्प रिजेस हैं, अगर आपको याद हो तो उनके पहले हम we used to name them as the mesio-occlusal and the disto-occlusal slopes. They are also the names for these regions. ठीक है? अच्छा, अब हम बात करेंगे लिंगुअल कस्प की। इसी तरह लिंगुअल कस्प की भी 4 रिजेस हैं।
ये आपका लिंगुअल साइड पे जो कस्प है ये आपका लिंगुअल कस्प है, ये लिंगुअल कस्प की टिप है। लिंगुअल कस्प की भी अपनी 4 रिजेस हैं। जो कस्प टिप से लिंगुअल साइड के ऊपर जा रही है दैट इज दी लिंगुअल रिज। जो कस्प टिप से ऑक्लूजल टेबल पे जा रही है ये वाली, दिस इज कॉल्ड दी बकल रिज, क्योंकि ये बकल डायरेक्शन में जा रही है, और ट्राइंगुलर रिज एज वेल। ठीक है, इसी तरह जो कस्प टिप से डिस्टल साइड पे जा रही है वो डिस्टल, और जो मीजियल साइड पे जा रही है वो मीजियल। ये आपकी 4 कस्प रिजेस हो गई। ठीक है, 4 कस्प रिजेस लिंगुअल कस्प की, 4 कस्प रिजेस बकल कस्प की। अगर यहाँ पे मैं इसको लिखूं तो ये आपके पास क्या है, बकल कस्प की आगे से 4 लीनियर एलिवेशंस हैं, बकल रिज, लिंगुअल रिज, और लिंगुअल रिज का दूसरा नाम ट्राइंगुलर रिज भी है। ठीक है, मीजियल रिज एंड डिस्टल रिज। इसी तरह लिंगुअल रिज की भी या लिंगुअल कस्प की भी 4 रिजेस हैं, बकल रिज जिसका दूसरा नाम ट्राइंगुलर रिज भी है, लिंगुअल रिज जो लिंगुअल सरफेस पे है, मीजियल रिज एंड डिस्टल रिज। तो ये आपके पास पहली 2 एलिवेशंस राउंडेड इन द फॉर्म ऑफ कस्प्स, बकल एंड लिंगुअल। अब दोनों कस्प की 4 कस्प रिजेस हैं जो कि लीनियर एलिवेशन है, बकल कस्प की 4, लिंगुअल कस्प की 4 लीनियर एलिवेशंस। दैट मेक्स अ टोटल ऑफ हाउ मेनी एलिवेशंस, 4 + 4 8 लीनियर एलिवेशंस ऑन द ऑक्लूजल टेबल अभी तक। ठीक है, अच्छा उसके बाद ऑक्लूजल टेबल के ऊपर आपको 2 और लीनियर एलिवेशंस भी नजर आ रही होंगी, एक ये और एक ये, जो कि आपकी मार्जिनल रिजेस हैं, जो कि आपकी ऑक्लूजल टेबल की टर्मिनेशंस बना रही है, जिनके बारे में हम पहले भी बात कर चुके हैं। सो यू हैव 2 मोर एलिवेशंस, लीनियर एलिवेशंस, मीजियल मार्जिनल रिज प्लस डिस्टल मार्जिनल रिज। ये कितनी है, 2, 8 + 2 आपके पास अब हो गई टोटल 10 लीनियर एलिवेशंस। ठीक है, 4 for each cusp की ridges, दो marginal ridges, that makes a total of 10 linear elevations on your crown. अब अगर आप इस क्राउन को गौर से देखें तो ये जो ट्राइंगुलर रिजेस थी या ये वाली जो रिजेस थी बकल कस्प की, ये वाली ट्राइंगुलर रिज और द लिंगुअल रिज, और इसी तरह लिंगुअल कस्प की ये वाली बकल रिज और ट्राइंगुलर रिज, ये दोनों बिल्कुल सेंटर में यहाँ पे मीट कर रही हैं। इन दोनों को मिलाकर हम कहते हैं ट्रांसवर्स रिज। ठीक है, दोनों देखो बिल्कुल सेंटर ऑफ द ऑक्लूजल टेबल में एक पॉइंट के ऊपर एक दूसरे के साथ मीट कर रही हैं। दिस होल थिंग इज कॉल्ड दी ट्रांसवर्स रिज। यहाँ से लेकर यहाँ तक इस पूरे को हम कहते हैं ट्रांसवर्स रिज। ट्रांसवर्स रिज अगर आपको याद नहीं है, बाय डेफिनेशन इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ 2 ट्राइंगुलर रिजेस ऑन द ऑक्लूजल टेबल। किसी को भी अगर याद नहीं है ये रिजेस तो प्लीज जाके रिजेस रिवाइज कर लें, क्योंकि अब आगे हमने सारी रिजेस की ही बात करनी है। सो व्हाट डू वी हैव ऑन द ऑक्लूजल टेबल, 2 राउंडेड एलिवेशंस, कस्प्स, 1 बकल एंड 1 लिंगुअल कस्प। बकल कस्प की 4 रिजेस हैं, लिंगुअल कस्प की भी 4 रिजेस हैं। दैट मेक्स अ टोटल ऑफ 8 linear elevations. Then you have 2 linear elevations at the boundaries, the marginal ridges, distal and mesial. Then you have a transverse ridge in the center of the occlusal table, जहाँ पे 2 triangular ridges meet कर रही हैं। इस पूरी को हम transverse ridge कहते हैं। That makes a total of 11 ridges. ये टोटल आपके पास एलिवेशंस हैं ऑक्लूजल टेबल के ऊपर। ठीक है, अच्छा अब हम इस ऑक्लूजल टेबल के ऊपर दोबारा से बात करते हैं। बकल कस्प 4 रिजेस, लिंगुअल कस्प 4 रिजेस, 1 mesial marginal ridge, 2nd distal marginal ridge, then this whole thing is called the transverse ridge. This is it. लिंगुअल रिजेस ऑक्लूजल सरफेस में तो नहीं आती ना, डिपेंड्स कि कौन सा कस्प है। जैसे बेटा ये बकल कस्प है तो इसकी जो ये वाली रिज है ये ऑक्लूजल टेबल पे आ रही है, ये इसकी लिंगुअल रिज है। इसी तरह ये लिंगुअल कस्प है तो इसकी लिंगुअल रिज लिंगुअल सरफेस पे ही जाएगी। समझ आई सही था नूर?
डिपेंड करता है कि आप कौन से कस्प के बारे में बात कर रहे हैं। बकल कस्प की लिंगुअल रिजेस ऑक्लूजल टेबल पे आती हैं, लिंगुअल कस्प की लिंगुअल रिज डेफिनेटली लिंगुअल सरफेस पे आती है। ओके, ये बकल कस्प है, इसकी 4 रिजेस हैं। जो बकल सरफेस पे जा रही है ये वाली, ये बकल रिज है। जो ऑक्लूजल टेबल पे आ रही है, लिंगुअल डायरेक्शन में जा रही है, वो लिंगुअल रिज है, और इसको हम ट्रायंगुलर और हाफ ऑफ द ट्रांसवर्स रिज भी कहते हैं। ये मीजियल और डिस्टल रिजेस हैं। इसी तरह ये लिंगुअल कस्प है तो उसकी ये लिंगुअल रिज है, और जो ऑक्लूजल टेबल पे जा रही है टुवर्ड्स द बकल सरफेस, वो बकल रिज, दिस इज द बकल रिज, द हाफ ऑफ द ट्रांसवर्स रिज एंड ट्रायंगुलर रिज। उसके अलावा ये और ये मीजियल और डिस्टल रिजेस हैं। ठीक है, दिस इज इट अबाउट द रिजेस। अगर किसी का रिजेस के बारे में कोई सवाल है तो प्लीज़ पूछ लें। अच्छा, रिजेस के बाद हमारी नेक्स्ट जो चीज़ है इम्पॉर्टेंट, अगर आपको याद हो तो मैंने बताया था कि हर कस्प की 4 रिजेस होती हैं और हर कस्प की 4 इंक्लाइंड प्लेन्स होती हैं। इंक्लाइंड प्लेन क्या होता था? बाय डेफिनेशन इंक्लाइंड प्लेन वाज द स्लोपिंग एरिया बिटवीन 2 कस्प रिजेस। Every cusp has 4 cusp ridges and 4 inclined planes, and these inclined planes are named by the 2 ridges they fall in between. ठीक है? ठीक है। अच्छा, तो बकल कस्प की कौन कौन सी होंगी? ये 2 कस्प रिजेस हैं, बकल एंड मीजियल। तो ये जो मैं लाइन कर रही हूँ एरिया, ये सारा 1 इंक्लाइन प्लेन। इसी तरह ये सारा एरिया 2 इंक्लाइन प्लेन। इसी तरह ये सारा एरिया 3 इंक्लाइन प्लेन, और ये सारा एरिया 4 इंक्लाइन प्लेन। इसी तरह लिंगुअल कस्प की भी 4 इंक्लाइन प्लेन्स हैं। इंक्लाइन प्लेन नंबर 1 मार्क कर रही हूँ, इंक्लाइन प्लेन नंबर 2, इंक्लाइन प्लेन नंबर 3 एंड इंक्लाइन प्लेन नंबर 4। ये आपके पास 4 इंक्लाइन प्लेन्स हैं इस दांत के कस्प के, और इस कस्प के भी इसी तरह 1, 2, 3 एंड 4, and they are named by the 2 cusp ridges they fall in between. तो बकल कस्प के अगर इंक्लाइन प्लेन्स को हम नेम करें तो ये बकल कस्प रिज है और ये मीजियल कस्प रिज है। सो मीजियो बकल इंक्लाइन प्लेन ये हो गया, ये डिस्टो बकल इंक्लाइन प्लेन हो गया। इसी तरह मीजियो लिंगुअल इंक्लाइन प्लेन, डिस्टो लिंगुअल इंक्लाइन प्लेन। इसी तरह यहाँ पर लिंगुअल कस्प है, लिंगुअल रिज, मीजियो लिंगुअल इंक्लाइन प्लेन, डिस्टोलिंगुअल इंक्लाइन प्लेन, मीजियो बकल इंक्लाइन प्लेन, डिस्टो बकल इंक्लाइन प्लेन। तो अगर आपको रिजेस के नाम आ गए हैं तो आपको इंक्लाइन प्लेन्स के नाम भी आराम से आ जाएंगे। 2 जो रिजेस हैं उनके दरमियान में जो भी इंक्लाइन प्लेन फॉल करेगा उसका वही नाम होगा जो उसकी साइड्स पे 2 रिजेस होंगी। तो important thing to remember is that each cusp has 4 ridges and they are named in the direction the ridge is falling. Mesial cusp ridge, distal cusp ridge, buccal cusp ridge, lingual cusp ridge. जो भी cusp ridge occlusal table पे आती है, चाहे वो बकल कस्प की लिंगुअल रिज है या वो लिंगुअल कस्प की बकल रिज है, अगर वो ऑक्लूजल टेबल पे भी फॉल कर रही है तो वो ट्रायंगुलर रिज भी कहलाती है। और अगर 2 ट्रायंगुलर रिजेस मीट कर रही हों, जैसे कि यहाँ पर मीट कर रही हैं, तो उसको हम ट्रांसवर्स रिज भी कहते हैं। अगर ये सूरत हाल हो कि ट्रांसवर्स रिज बन रही है तो हम ऑक्लूजल सरफेस के ऊपर जो ट्रांसवर्स रिज बनती है उसको काउंट करते हैं सैयदा नूर, वरना ऑक्लूजल सरफेस के ऊपर जो भी रिज आती है उसको हम कस्प रिज में ही कंसिडर करते हैं। ठीक है, या उसका दूसरा नाम हम ट्रायंगुलर रिज दे देते हैं, लेकिन इसको हम एडिशनल +1 नहीं करते। ठीक है। अच्छा, सो ईच कस्प हैज 4 इंक्लाइन प्लेन्स, मीजियोबकल, डिस्टोबकल, मीजियोलिंगुअल, डिस्टोलिंगुअल, ये 4 इंक्लाइन प्लेन्स होंगे। अब जो आपके मैक्सिलरी टीथ होते हैं ना, उसके बकल कस्प मैक्सिलरी और मैंडिबुलर दांत इस तरह से ऑक्लूड करते हैं कि मैक्सिलरी टीथ के बकल कस्प की सिर्फ लिंगुअल साइड फंक्शनल होती है और उनका जो लिंगुअल कस्प होता है वो कम्प्लीटली फंक्शनल होता है। फंक्शनल से क्या मुराद है?
अच्छा, अब ये जो दो दांत हैं ये एक दूसरे से ऐसे ऑक्लूड करते हैं, ठीक है, ये ऐसे ऑक्लूड करते हैं कि बकल कस्प की सिर्फ लिंगुअल साइड पे जो चीज़ें होती हैं ना, वो जो इंक्लाइन प्लेन्स होते हैं वो ऑक्लूड कर रहे होते हैं, वो मैस्टिकेट कर रहे होते हैं, और लिंगुअल कस्प पूरा का पूरा इसके साथ ऑक्लूड कर रहा होता है। जैसे ये देखो, लिंगुअल कस्प पूरा ऑक्लूड कर रहा है और बकल कस्प की सिर्फ लिंगुअल साइड ऑक्लूड कर रही है। मैक्सिलरी टीथ ऐसे ऑक्लूड करते हैं कि बकल सरफेस की सिर्फ लिंगुअल साइड ऑक्लूड कर रही होती है और लिंगुअल पूरी की पूरी ऑक्लूड कर रही होती है। देखो पूरी फॉसा में बैठ रही है। तो इस वजह से जो मैक्सिलरी टीथ के बकल इंक्लाइन प्लेन्स हैं उनमें से सिर्फ लिंगुअल इंक्लाइन प्लेन्स फंक्शनल होते हैं, जिनको हम कहते हैं मीजियोलिंगुअल एंड डिस्टोलिंगुअल इंक्लाइन प्लेन्स। ओनली दे आर फंक्शनल। जो इस साइड पे इंक्लाइन प्लेन्स होंगे डेफिनेटली वो फ्री हैं, ये 1 और 2 जिसको मैंने लेबल किया है विच आर दी मीजियोबकल एंड डिस्टोबकल, ये नॉन फंक्शनल होंगे, ठीक है। और जो इस साइड पे इंक्लाइन प्लेन्स होंगे ये वाले मीजियोलिंगुअल एंड डिस्टोलिंगुअल ऑफ द बकल कस्प, ये फंक्शनल होंगे सिर्फ, और बकल लिंगुअल कस्प पूरा का पूरा फंक्शनल होगा। इसमें 1 2 3 4 इसके चारों इंक्लाइन प्लेन्स टेक्निकली फंक्शनल होते हैं। और ये आपका सारे मैक्सिलरी टीथ का यही होता है। आगे भी अब मोलर्स भी पढ़ेंगे तो याद रखना कि हमेशा मैक्सिलरी टीथ इस तरह से ऑक्लूड करता है मैंडिबुलर टीथ के साथ कि उसका लिंगुअल कस्प, जितने भी लिंगुअल कस्प हो, यहाँ तो एक ही है ना, लिंगुअल कस्प कंप्लीटली इंगेज कर रहा होता है कि उसके चारों इंक्लाइन प्लेन्स फंक्शनल होते हैं, और जो बकल कस्प होता है उसकी सिर्फ लिंगुअल साइड फंक्शनल होती है, ठीक है। तो किताब में भी यही लिखा हुआ है, द बकल कस्प हैज 4 इंक्लाइन प्लेन्स विच आर द स्लोपिंग एरियाज लोकेटेड बिटवीन 2 एडजेसेंट कस्प रिजेस। They take the name of the 2 ridges that they lie between, जैसे कि मैंने बताया, मीजियोबकल, डिस्टोबकल, मीजियोलिंगुअल, डिस्टोलिंगुअल। अब ये इनमें से बकल कस्प की सिर्फ लिंगुअल इंक्लाइन प्लेन्स फंक्शनल होंगे, ये वाले 1 और 2, और लिंगुअल के चारों फंक्शनल होंगे। लेकिन किताब में लिखा हुआ है कि ये कस्प चूंकि इतना छोटा है, ये अपने मैंडिबुलर दांत के साथ ऐसे ऑक्लूड करता है कि ये एक्सेप्शनल दांत है जिसमें लिंगुअल कस्प के चारों फंक्शनल नहीं होते इंक्लाइन प्लेन्स, एक नॉन फंक्शनल होता है। एंड यू हैव टू फाइंड आउट फॉर मी कि वो कौन सा होता है, एंड यू हैव टू टेल मी बिफोर द नेक्स्ट लेक्चर, ठीक है, विच इज़ गोइंग टू बी टुमारो। कल की क्वेश्चन एंड आंसर सेशन में मैं आप लोगों से पूछूंगी कि लिंगुअल कस्प ऑफ द मैक्सिलरी फर्स्ट मोलर मेक्स एन एक्सेप्शन वेयर इसका 1 इंक्लाइन प्लेन इज नॉन फंक्शनल। वैसे मैक्सिलरी दांतों के लिंगुअल कस्प के सारे इंक्लाइन प्लेन्स फंक्शन होते हैं, लेकिन इस दांत में एक एक्सेप्शन है, इसका एक इंक्लाइन प्लेन नॉन फंक्शनल होता है। वो कौन सा है और क्यों है, दिस यू हैव टू आंसर मी इन द नेक्स्ट लेक्चर, ठीक है। अच्छा, दिस इज इट अबाउट द डिप्रेशंस, एलिवेशंस ऑन द ओक्लूजल टेबल। क्या क्या एलिवेशंस हमने किन किन एलिवेशंस की बात की है? लेट्स ड्रॉ ऑल ऑफ दीज एलिवेशंस ऑन दी नोटबुक हेयर। मैं ड्रॉ कर रही हूँ, फिर मैं इस पेपर को करीब लाऊंगी ताकि आप लोगों को नजर आए। ऑक्लूजल सरफेस में ड्रॉ करने लगी हूँ। ठीक है, बकल, लिंगुअल, डिस्टल, मीजियल। मीजियल के अंदर यहाँ पर एक मीजियल मार्जिनल ग्रूव होता है, ठीक है। ओके, सो हेयर यू हैव एलिवेशन नंबर 1 विच इज दी बकल cusp. Here you have the elevation number 2 which is the lingual cusp. ठीक है, ये आपके पास इस वक्त सिचुएशन है। Then you have distal marginal ridge here, mesial marginal ridge here. ठीक है, you have a mesial marginal ridge and a distal marginal ridge. Linear elevation 1, linear elevation 2. डस्टर कहाँ से आ गया निम्रा?
बकल कस्प की 4 कस्प रिजेस हैं. अब मैं वो कस्प रिजेस ड्रॉ करने लगी हूँ. ऑक्लूजल टेबल पे जो आ रही है लिंगुअल, इसको हम कहेंगे लिंगुअल रिज और ट्रायंगुलर रिज. ठीक है. जो बकल सरफेस पे जा रही है ये है आपकी बकल रिज. ये जो मीजियल साइड पे जा रही है ये आपकी मीजियल रिज है. जो डिस्टल साइड पे जा रही है ये वाली, ये आपकी डिस्टल रिज है. ठीक है. ये आपकी हो गई 4 रिजेस: बकल रिज, मीजियल रिज, distal ridge and lingual ridge, also called the triangular ridge. ठीक है. इसी तरह lingual cusp की भी 4 ridges हैं. ये क्योंकि बकल डायरेक्शन में जा रही है तो ये बकल रिज हो गई इसकी, और इसका दूसरा नाम ट्रायंगुलर रिज भी है. कस्प टिप से जो लिंगुअल डायरेक्शन में जा रही होती है वो होती है लिंगुअल रिज. जो डिस्टल साइड पे जा रही होती है वो होती है डिस्टल रिज. जो मीजियल साइड पे जा रही होती है वो होती है मीजियल रिज. तो ये आपकी इस वक्त सिचुएशन है लीनियर एलिवेशंस की. बकल कस्प की 4 रिजेस, लिंगुअल कस्प की 4 रिजेस, 2 मार्जिनल रिजेस. अब ये वाली रिज जो यहाँ से आ रही है, लिंगुअल रिज ऑफ द बकल कस्प, ऑल्सो कॉल्ड द ट्रायंगुलर रिज, और ये लिंगुअल बकल कस्प ऑफ द लिंगुअल बकल रिज ऑफ द लिंगुअल कस्प, ऑल्सो कॉल्ड द ट्रायंगुलर रिज, ये सेंट्रल ग्रूव के ऊपर ना यहाँ पर मीट कर रही होती हैं. ठीक है. यहाँ से एक डिप्रेशन सा ग्रूव सा जा रहा है जिसको कहते हैं सेंट्रल ग्रूव. अब ये सेंट्रल ग्रूव पे एक दूसरे के साथ एज टू एज मीट कर रही होती हैं, इसलिए इस पूरी चीज़ को हम कहते हैं ट्रांसवर्स रिज. TR लिख दिया मैंने. सो यू हैव टोटल 10 लीनियर एलिवेशंस, 2 मार्जिनल रिजेस, 1 ट्रांसवर्स रिज and 4 cusp ridges each. 4 plus 4 8 9 10 11, a total of 11 linear elevations on the occlusal table. I hope you can clearly see this figure. If you cannot, I'm going to take a picture of this and post it under the video after I'm finished. ठीक है. ये आपकी लीनियर एलिवेशंस आपको नज़र आ रही होती हैं ऑन दी ऑक्लूजल टेबल ऑफ द मैक्सिलरी फर्स्ट प्रीमोलर. और इसी तरह आपने ड्रॉ करना है जब आपको ऑक्लूजल टेबल मैक्सिलरी फर्स्ट प्रीमोलर का ड्रॉ करने के लिए आए. तो अब इसमें हमारे पास रह गई हैं इंक्लाइंड प्लेन्स. इंक्लाइंड प्लेन्स जो हैं, हर कस्प की 4 इंक्लाइंड प्लेन्स हैं. तो लिंगुअल बकल कस्प की ये जो पूरा रीजन है ये इंक्लाइन प्लेन नंबर 1 है. इसको हम कहेंगे, क्योंकि ये लिंगुअल और डिस्टल कस्प रिज के दरमियान में है तो उसको हम कहेंगे डिस्टो लिंगुअल इंक्लाइन प्लेन. ये वाला जो पूरा रीजन है ये इंक्लाइन प्लेन नंबर 2 है. इसको हम कहेंगे मीजियोलिंगुअल इंक्लाइन प्लेन. इसी तरह ये वाला जो रीजन है ये इंक्लाइन प्लेन नंबर 3 है और ये इंक्लाइन प्लेन नंबर 4 है. ठीक है. तो ये जो बकल साइड पे इंक्लाइन प्लेन्स हैं, डिस्टोबकल, मीजियोबकल इंक्लाइन प्लेन्स हो गए. ठीक है. इसी तरह लिंगुअल साइड कस्प के भी 4 इंक्लाइन प्लेन्स हैं. 1 2 3 4. 1 2 3 4. ये वाले बकल हो गए, ये वाले लिंगुअल हो गए. सॉरी, ये वाले लिंगुअल हो गए, ये वाले बकल हो गए. अब मैं इनको साइड पे लेबल करके आपको पिक्चर भेज दूंगी. ठीक है. बकल कस्प के 4 इंक्लाइन प्लेन्स, द लिंगुअल वंस आर फंक्शनल. लिंगुअल कस्प के चारों मैक्सिलरी टीथ में फंक्शनल होने चाहिए, लेकिन इस दांत में इस कस्प का एक नॉन फंक्शनल होता है. वो कौन सा होता है ये आपने मुझे बताना है नेक्स्ट लेक्चर में. दिस इज इट अबाउट द एलिवेशंस ऑफ द ऑक्लूजल सरफेस. अब हम बात करेंगे डिप्रेशंस की, और इस लेक्चर में नहीं करेंगे. इस लेक्चर में मैं सिर्फ आपको जनरली बता दूंगी कि डिप्रेशंस कौन कौन से हैं. नेक्स्ट लेक्चर में हम डिटेल में बात करेंगे डिप्रेशंस के बारे में. ठीक है. डिप्रेशन क्या होता है? कनकैविटी और डिप्रेस्ड एरिया. तो इस सरफेस के ऊपर आपके पास कौन कौन से डिप्रेशंस हैं? नंबर 1, द बिगेस्ट डिप्रेशन इज द फॉसे. प्लूरल होता है. ठीक है.
दो हैं आपके पास, दो फॉसाज हैं आपके पास, एक मीजियल ट्रायंगुलर फॉसा है और एक डिस्टल ट्रायंगुलर फॉसा है। फिर उसके बाद आपके पास पिट्स हैं, पिन पॉइंट डिप्रेशंस, एक मीजियल पिट है और एक डिस्टल पिट है, ठीक है, पी लिखना चाह रही थी मैं यहाँ पर। उसके बाद आपके पास हैं ग्रूव्स, ठीक है, प्राइमरी भी और सेकेंडरी भी। दो तरह के ग्रूव्स हैं, प्राइमरी ग्रूव्स हैं और सेकेंडरी ग्रूव्स हैं, ठीक है। सो दी डिप्रेशंस दैट यू हैव ऑन द ओक्लूजल टेबल आर फॉसे, पिट्स एंड ग्रूव्स. You have two fossae, 1 and 2. This whole thing is fossa number 1 and this whole thing is fossa number 2. This is the mesial side of the tooth, so this is the mesial triangular fossa and this is the distal triangular fossa. Then you have these pinpoint depressions here, the mesial pit in the mesial fossa, the distal pit in the distal fossa. Then these linear things here, these linear depressions here on the occlusal table, ये जो आपको नज़र आ रही हैं ये सारी grooves हैं। इसमें से कुछ प्राइमरी हैं और कुछ ऑक्सिलरी या सेकेंडरी हैं। इनके बारे में हम नेक्स्ट लेक्चर में बात करेंगे, ठीक है। We are done with today's lecture. Now if you could please mark yourselves present. DP is equal to distal pit. Yep, DP is equal to distal pit. I'm going to take a picture of this and then send on the group here, on the video in the comment section. मैं इसको post कर दूँगी. Okay, it is 1:34. You have 2 minutes to mark yourselves present in the comment section. If anyone has a question, meanwhile, please ask. अगर किसी को रिजिस का कॉन्सेप्ट नहीं है तो प्लीज ओपन अप योर बुक्स ऑन चैप्टर नंबर 1. आई थिंक पेज नंबर तो मुझे याद नहीं है, लास्ट पेज है चैप्टर नंबर 1 का, रिजिस की, उसके ऊपर हर रिज की डेफिनेशन लिखी हुई है. मैंने सारी रिजिस आप लोगों को एक्सप्लेन भी की थी. तो आप लोग प्लीज़ उसको वहाँ से एक दफ़ा अपना नॉलेज रिफ्रेश कर लें. पहले भी मैंने कहा था कि yes, DP is for distal pit, not your display picture. Dr. Neelam, are you there marking the attendance? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27. Does anybody have a question? ऑक्लूजल सरफेस अभी से अच्छे तरीके से समझ लें. जैसे ही नेक्स्ट लेक्चर में विच इज़ गोइंग टू बी मोस्ट प्रॉबेबली, आज मंडे है ना, नेक्स्ट लेक्चर ऑन मॉर्फोलॉजी इज़ गोइंग टू बी ऑन सैटरडे इंशाल्लाह. तो सैटरडे वाले लेक्चर में मैं आप लोगों को एक असाइनमेंट दूंगी जिसमें मैं आपसे ऑक्लूजल सरफेस ड्रॉ करवाऊंगी. किताब में इस तरह से ड्रॉ नहीं हुई हुई, तो अगर आपको समझ आई है तो सिर्फ तभी आप वो ड्रॉ कर सकेंगे. तो प्लीज़ अच्छे तरीके से ऑक्लूजल सरफेस समझ लें. अगर अभी ऑक्लूजल सरफेस का कॉन्सेप्ट बन गया तो मोलर्स भी समझ आएंगे, वरना तो बहुत मुश्किल है कि आप लोगों को मोलर्स समझ आएँ. आई नो इट इज़ हार्ड getting
the hold of things through distant learning. It is as difficult for me as it is for you, but I'm trying my best. मैं multiple times आपसे पूछती हूँ, मैं हर चीज़ आपको दिखाती हूँ, मॉडल पे भी, फिर बना के भी दिखाती हूँ, then I post pictures as well. अगर किसी को फिर भी समझ नहीं आती तो प्लीज़ मुझसे सवाल करें. एंड में साल के आखिर में मॉर्फोलॉजी इकट्ठी नहीं पढ़ी जा सकती अगर आपका कॉन्सेप्ट नहीं है तो. और मॉर्फोलॉजी के ऊपर वाइवा बहुत टिका के होता है, एक्सटर्नल एग्जामिनर भी बहुत टिका के वाइवा लेता है. तो प्लीज़ मॉर्फोलॉजी अपनी अच्छी करें और अच्छे भले सवाल आते हैं मॉर्फोलॉजी में से. वर्दा मेहदी, आपने सिर्फ लिखा है ट्रांसवर्स रिज. व्हाट डू यू वांट टू नो अबाउट ट्रांसवर्स रिज? क्या समझ नहीं है कि ट्रांसवर्स रिज क्या है? शुड आई एक्सप्लेन इट अगैन? ट्रांसवर्स रिज की क्या डेफिनेशन है? अभी तो मैं क्लास में होती तो पहले मैं तुमसे डेफिनेशन सुनती. ट्रांसवर्स रिज बाय डेफिनेशन इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ टू ट्राइंगुलर रिजेस. ठीक है, ये इसकी डेफिनेशन है. अगर डेफिनेशन आप लोगों को पता है ना चीज़ों की, तो तभी आप लोग आगे बढ़ सकते हैं. ट्रांसवर्स रिज इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ टू ट्राइंगुलर रिजेस. What are the two triangular ridges that we have on this occlusal table? One is this and the other is this. If they meet in the central groove, ये जैसे यहाँ पे बिल्कुल एक दूसरे के साथ यूं करके ये मीट कर रही हैं. If they meet in the central groove in the center of the table, तो इस पूरी चीज़ को हम कहते हैं transverse ridge. A transverse ridge is a combination of triangular ridge 1 and triangular ridge 2. I hope समझ आ गई हो. वर्दा, आपको समझ आई है? 1:39 हो गया है. Has everyone marked themselves present? कोई रह तो नहीं गया? बाद में मुझे ना मैसेज कीजिएगा कि मैं थी और मेरा इंटरनेट का ये मसला हो गया था वो और स्टफ लाइक दैट. अभी अपने आप को प्रेजेंट कमेंट करें. फिर कह रही हूँ कि अगर किसी का कोई सवाल है और उसको नहीं ऑक्लूजल टेबल का कॉन्सेप्ट समझ आता, प्लीज़ मुझसे इंडिविजुअली भी आप मैसेज करके पूछ सकते हैं, लेकिन अपना ऑक्लूजल टेबल का कॉन्सेप्ट बना लें. मेरे पास सिर्फ 31 स्टूडेंट्स ने प्रेजेंट मार्क किया है और अभी किसी ने भी नहीं किया. आई एम गोइंग टू एंड द सेशन इन 1 minute. नगीन फातिमा, आपने अपनी असाइनमेंट सबमिट नहीं कराई. आई एम गोइंग टू मार्क यू 0 इन दैट असाइनमेंट. असाइनमेंट सबमिशन का टाइम आज के लेक्चर से पहले था. आपने अभी तक सबमिट नहीं कराई, बाकी सब ने सबमिट करा दिया है. ओके, I hope everyone has marked themselves present. 42 अटेंडेंस है मेरे पास अभी तक, जिसमें से एक डॉक्टर नीलम है. सो टेक्निकली 41 ऑफ यू आर प्रेजेंट. वी आर डन विद टुडेज लेक्चर. नेक्स्ट लेक्चर में हम ऑक्लूजल टेबल के डिप्रेशंस के बारे में बात करेंगे और उसके रूट सेक्शन के बारे में बात करेंगे. प्लीज़ जो मैंने आज पढ़ाया है ऑक्लूजल टेबल की एलिवेशंस, प्लीज़ दोबारा पढ़ लीजिएगा उसको. कितनी बार मैं कहूँ आप लोगों को, फिर भी आपने नहीं पढ़ना, मुझे पता है. ओके नगीन, हमें नहीं रिसीव हुई आपकी प्रेजेंटेशन, आपकी असाइनमेंट. यू माइट हैव सबमिटेड इट लेट. When did you submit it? What time?
नगीन मुझे आप अलहदा से मैसेज करें. ओके मैं देखती हूँ. लेट मी आस्क डॉक्टर नीलम टू रीचेक. ओके I hope you're done. I am going to see you guys tomorrow at 11 o'clock inshallah. Allah Hafiz.